of today. Before starting the session, I would like to inform everyone we have a very big announcement to make for all the Maheshwaris here in Singapore. So, first we'll take the session and then the announcement. As we now approach the final knowledge session of the Singapore International NextGenpreneur Business Conclave 2026, we move towards a topic that is not just shaping industries, but redefining the future of businesses across the globe: digital transformation. Today's businesses that adapt to technology lead the future, while those that resist change risk being left behind. Artificial intelligence, cloud solutions, and digital innovation are no longer concepts of tomorrow. They are the tools of today's success. And with this thought, we move into the concluding session of today's conclave: digital transformation for SMEs, adopting AI and cloud solutions. To lead this highly relevant and future-focused session, we are honored to have with us an accomplished banking and investment professional with extensive international experience. Please join me in welcoming CA Shri Manmohan Mall. He is the founder and CEO of Aprio Hub Advisory, a Singapore-registered business consultancy and professional development platform. With over 20 years of experience across Singapore, Hong Kong, and India, he has built an impressive career in banking and investment management. His expertise lies in originating, structuring, executing, and distributing structured equity, credit, and investment solutions, along with extensive exposure to both institutional and wealth management banking sectors. A highly accomplished professional, he is also a chartered accountant and holds an MBA in finance from Indian Institute of Management, Ahmedabad. With his rich experience in finance, investment strategy, and business advisory, today's concluding session promises to provide valuable perspective on how SMEs can embrace digital transformation and prepare themselves for future of business. So ladies and gentlemen, as we move towards the final session of today's conclave, let us continue the same energy and enthusiasm and welcome Shri Manmohan Mall with a huge round of applause. I also request Shri Rajesh Malpani to please join us and felicitate our speaker. Over to you, sir. नमस्कार जी, जय महेश एंड जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं कविता जी का शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बेट छोड़ा है जिससे कि आप लोग ध्यान दें, आप लोग रहे यहाँ पर। वी ऑलरेडी डाउन बाय लाइक 30-40%, so thanks for bearing with me for the last 30 minutes. I know, this is not the best time to be a speaker when you've had a long day and you're waiting for your high tea, which is, I'm sure, very exciting. So if you just bear with me for 30 minutes, give me your attention, I'm very sure that you will take away a couple of things which you may actually end up using as early as tomorrow. So before I start and taking inspiration from a friend, Pankaj Kabra ji, can I have a quick show of hand to see who all of you have kids going to high school? High school में किसके किसके बच्चे हैं यहाँ पर अभी, इंडिया में हो चाहे सिंगापुर में हो? Okay, not too many actually. Okay. Acha. Another show of hand for people who have kids either in university or headed to university. Okay, all right. Ye bhi, wow. But don't worry, the rest of the folks who either don't have kids in high school or kids going to university, you still have got a lot of relevant sections here, and I'm sure you'll find it useful because the topic for the day is
organization transformation using AI and cloud solution. आज के इस सेशन के बाद में अगर दो चीज़ अगर आपको ध्यान रहे तो मेरा ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएगा. सबसे पहला है OPC. उसके बाद मैं आपको एक और एक्रोनिम बताऊंगा एंड अगर वो आप ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर यू विल फाइंड दिस सेशन रियली हेल्पफुल. बहुत सिंपल सी चीज़ है एंड काफ़ी लोगों ने आज AI की बात की है, टेक्नोलॉजी की बात की है, तो मेरे जो ख्याल है इसके अंदर में वो आपको एक्चुअल में यूज़ करने में काम आएंगे. यू कैन एक्चुअली इनकॉर्पोरेट दिस इन वट एवर यू आर डूइंग, बी इट इन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और एजुकेशन इन एनी स्पेस. So OPC stands for very simple, one person company. And why this one person company is important? आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपको एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है. नॉर्थ स्टार की बात की हमने बात की कि हमारा विजन क्या है, पर इन सब चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है, टीम चाहिए होती है और पूरा प्रोसेस चाहिए होता है. बट आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये मे बी $10 मिलियन, $100 मिलियन या $1 बिलियन ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक आदमी चलाए. That is the one person company. And ये संभव हो पाया है for only one reason कि आज हमारे पास में AI की सुविधा है जिससे हम काफ़ी चीज़ें AI के थ्रू करवा सकते हैं. And that is the purpose of this whole presentation. Numbers है and in the interest of time we would not go into all the numbers, but these are really big numbers. चाइना में जहाँ पर इंग्लिश इतना यूज़ नहीं किया जाता है वहाँ पर भी उन्होंने ऑफिशियल पॉलिसी में वन पर्सन कंपनी को रिकॉग्नाइज किया है, बिकॉज वहाँ पर लाइक एवरीथिंग एल्स इन चाइना OPC हैज़ बिकम अ क्रेज एंड पीपल आर रियली जनरेटिंग साइजेबल बिजनेस यूजिंग टेक्नोलॉजी, AI and just by themselves. And we'll take you through some examples of that. India again has been a country of entrepreneurs. The numbers are again big for India, like 15 million solo entrepreneurs. बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये सोलो एंटरप्रेन्योर्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बिजनेस चला रहे हों. एंड हमारी इच्छा है कि जिस तरह से चाइना में, जिस तरह से US में इतना प्रोग्रेस हुआ है, इंडिया में भी और हमारे समाज में लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बड़ा बिजनेस क्रिएट करें. दैट इज़ दी होल आइडिया. 3 एग्जांपल्स हैं. आप देखिएगा कि कितना डिफरेंट कंटेक्स्ट है, डिफरेंट कंट्री में है, लेकिन कहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी को, सिंपल टेक्नोलॉजी, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप और मैं भी यूज़ कर सकते हैं. एंड एक चीज़ बिफोर आई गेट टू दिस, आप सोच रहे होंगे मेरा बैकग्राउंड इज़ global banking for last 20 years and I've also been in the Banggood family building some business in East Africa. मेरा टेक्नोलॉजी से कोई लेन देन नहीं है. I have never studied technology or I'm not a technologist. But the reason I'm here is मैंने recently अपनी एक कंपनी खड़ी की है जो entirely using AI and I run that business using AI extensively and that's the reason I'm here. वो बहुत छोटा कंटेक्स्ट है, बड़े कंटेक्स्ट आपके सामने में है. चाइना का एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डिज़ाइनर कंपनी से बनाई है जिसको ना इंडस्ट्री के बारे में कोई आइडिया थी, ना टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया थी, लेकिन अकेले उसने एक बिज़नेस खड़ा किया है एक बहुत छोटी सी टीम के साथ में जो 2025 में $1 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रही है यूजिंग AI विदाउट एनी प्रायर नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी. उससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है लिनारा बोजीवा का. ये महिला eBay में काम करती थी, नौकरी चली गई, तो नौकरी ना करके इन्होंने सोचा कि अपना बिज़नेस खड़ा किया जाए. तो इनका बिज़नेस आप देखिए कि ये मार्केटिंग एजेंसी चलाती है और इनके पास में एक भी एम्प्लॉई नहीं है. इनके पास में 27 AI एजेंट के एम्प्लॉई हैं जो अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, अलग अलग जॉब कंट्रीब्यूट करते हैं इसके अंदर में. सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस कि कैसे AI को यूज़ करके एक महिला ने पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है जिसका फ़ायदा है कि जिस चीज़ में 6 हफ्ते लगते थे वो अब 3 दिन में हो जाती है. Last and obviously that's the bigger one in this example set. I'm not sure if you guys have used Base 44 or not, but it's a platform which allows you to create your own app without knowing any coding. And वो आप क्या करते हैं उसमें आप बोलेंगे कि भाई मुझे एक लॉजिस्टिक्स पे ऐप बनाना है जिसके ऐसे फीचर्स होने चाहिए, ऐसे कलर स्कीम होनी चाहिए और ये अपने आप उसको बना देगा. पर इसकी कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए है, इसने बेस 44 बनाया विदाउट डूइंग एनी कोडिंग हिमसेल्फ. इसने AI को यूज़ करके बेस 44 का प्लेटफॉर्म बनाया. अब जो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम अपना ऐप या वेबसाइट कुछ बना सकते हैं. नंबर्स देखिए आप,
3 हफ्ते में $1 मिलियन का ARR, ARR इज एनुअलाइज रिकरिंग रेवेन्यू, 3 हफ्ते में 1 मिलियन का ARR। 6 महीने में ये कंपनी विक्स बोल के एक बड़ी वेबसाइट की कंपनी है, उन्होंने खरीद ली $80 मिलियन में। 6 महीने में एक $80 मिलियन का बिजनेस खड़ा कर पाना ओनली बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द राइट माइंडसेट। एंड आई थिंक वो अगर हम अचीव कर पाए तो अगेन एज अ कम्युनिटी देयर इज लॉट दैट वी कैन डू। 2 बड़े नाम हैं AI के कंटेक्स्ट में, आई एम श्योर आप सभी वाकिफ़ होंगे इनसे, और एक है सैम ऑल्टमैन, ओपन AI चैट GPT आप यूज़ करते हैं उसकी कंपनी है। दूसरे हैं डारियो एमोडे, क्लॉड शायद आप लोगों ने यूज़ किया होगा, इंक्रीजिंगली बहुत पॉपुलर हो गया है, उसके CEO हैं। दोनों का ये मानना है कि 2026 तक पहली ऐसी कंपनी आएगी जो एक इंसान चला रहा होगा एंड उसकी वैल्यूएशन होगी $1 बिलियन। $1 बिलियन की कंपनी जिसका इंडिया में 9,500 करोड़ का वैल्यूएशन हुआ, 9,500 की कंपनी एक आदमी चलाएगा यूजिंग टेक्नोलॉजी, ये इनका प्रेडिक्शन है। आई एम श्योर 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ तो ऑलरेडी बन गए हैं, देखना है कि ये 2026 तक ये $1 बिलियन तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने शायद अब आपको ध्यान होगा कि OPC इज़ फॉर 1 पर्सन कंपनी, तो दूसरा एक्रोनिम अगर आप अलाउ करें, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस ACT। बहुत सिंपल सा है, A इज़ फॉर आस्क, C इज़ फॉर कन्फिगर एंड T इज़ फॉर ट्रस्ट। माने बहुत ही सिंपल है एंड आई एम श्योर आप लोग बहुत वाकिफ़ होंगे, ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये ऊपर में जो चीज़ दी हुई है, चैट GPT, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, जेमिनी एंड शायद नोटबुक LM एज वेल। आस्क इज समथिंग दैट यू यूज AI टू आस्क समथिंग, टू हैव अ चैट अबाउट समथिंग, टू स्ट्रेटेजाइज एंड सो ऑन। इट्स अ चैट बॉट। ये सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ AI यूसेज है जो आई एम श्योर बच्चे भी यूज़ करते हैं, आप सभी यूज़ करते हैं। In fact, I'm missing some of the kids who are there, the young people, and I thought that I'll have a conversation with them, पर शायद वो चले गए हैं कि so ये I'm sure everybody is very familiar. शायद ये आपने शायद नहीं यूज़ किया होगा, I'm just taking a guess, notebook LM। तो एक स्लाइड में मुझे एक डेमो देना था, बट आई थिंक कि कुछ टेक्नोलॉजी की चैलेंज है जहाँ पे मैं डेमो नहीं दे पा रहा हूँ, बट इतनी बढ़िया चीज़ है, फ्री है, गूगल की तरफ से है, अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैट, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, जेमिनी के बाद में नोटबुक LM। ये क्या करता है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी डॉक्यूमेंट दे दीजिए उसके अंदर में, ये सिर्फ उसी को एनालाइज करेगा और उसके बाद में आप उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी है लैविश, आपकी कंपनी है चॉइस, आपने एनुअल रिपोर्ट, आपका प्रोडक्शन डेटा उसमें डाल दिया, अब आप नेचुरल लैंग्वेज में उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भाई लास्ट ईयर कैसा था, आगे का क्या लग रहा है, प्रोडक्शन कैसा हुआ, इश्यूज क्या हो रहे थे, ये सारी चीज़ें आप उससे नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्स कर सकते हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ नोटबुक LM, एंड अगेन अ फ्री टूल फ्रॉम गूगल। एंड आई एम नॉट अ गूगल सेल्स पर्सन, आई एम जस्ट प्रमोटिंग बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल। यहाँ पे आके बात रुक जाती है। ज़्यादातर लोग ये आस्क के आगे नहीं बढ़ पाते हैं इन टर्म्स ऑफ AI यूसेज, एंड इसीलिए हम शायद बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ें अपनी कंपनी के लिए नहीं कर पाते हैं। What is important, and if I can really encourage some of you to take this seriously and give it a try, is configure. Configure is जहाँ पर आप AI को यूज़ करके चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं, आप प्रोसेसेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं। गांधी जी ने लॉजिस्टिक्स की बात की, हमने लैविश की भी कहानी सुनी कहाँ पे जैसे लॉजिस्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस वर्क फ्लो है वो आप AI के थ्रू बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसको रोबस्ट बना सकते हैं। जैसे उन्होंने हब स्पोक की बात की, ये अगेन आप AI में डालेंगे, आपका जो भी कंटेक्स्ट हो उसके अंदर में इट विल गिव यू द ऑप्टिमल सोल्यूशन कि क्या आपको कैसे करना चाहिए। लास्ट एंड द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट वेयर people can actually use and create those 100 million, 200 million or $1 billion company is the trust. शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, there is a term which is bigger than AI is agentic AI. Agentic AI is very simple. ये आपका एजेंट है, ये आपका एम्प्लॉई है। जिस तरह से आप अपने मैनेजर को, अपने सुपरवाइजर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई यहाँ से आपको वहाँ जाना है, ये चीज़ करनी है, आप ये सारा इंस्ट्रक्शन AI को दोगे एंड वो AI आपके लिए काम करेगा।
चीज़ ये रहेगी, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके मद्देनज़र वो काम करेगा, हर बार आपको पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप सो रहे होगे बट आपका वो एम्प्लॉई है 24/7 काम करेगा आपके लिए, एंड दैट्स व्हाट क्रिएट्स द वैल्यू ऑफ यूजिंग AI। सो ध्यान रखिएगा प्लीज़, ACT, A is for ask, C is for configure, and T is for trust. And if you can use beyond the ask, सिर्फ चैट ना करके उसको कुछ बिल्ड करने के लिए यूज़ करें, और उसको ट्रस्ट करके आप कुछ क्रिएट करें जो आपके लिए काम करे, you will end up, I'm sure, making bigger institutions and corporations. Again, in the interest of time, I'll quickly rush through this thing, and I'm sure कुछ एक context में काफ़ी obvious होगा, आप लोगों ने शायद use भी किया होगा. Different aspects of organization जहाँ पर AI के जो tools हैं, simple हो, complex हो, लोग use कर रहे हैं, आप भी use कर सकते हैं. वो हो सकता है sales में करें, operations में करें, फाइनेंस में करें, या फिर पीपल मैनेजमेंट में करें. एंड बहुत सी सिंपल चीज़ें हैं कि जितना आप एम्पावर करोगे अपने AI को, जितनी जानकारी उनको दोगे, उस हिसाब से वो आपको फीडबैक दे सकता है. तो जैसे मान लीजिए कि अगर सेल्स CRM में करना है, आप लोग, आई एम श्योर व्हेन शॉपिंग फॉर समथिंग, यू पुट अ मैसेज ऑन WhatsApp and you get an immediate response, and it could be like Singapore midnight or US midnight. You will get a response in 5 seconds. And that is done by a bot which is sitting behind WhatsApp. कोई human interaction नहीं है, पर आपको लगेगा कि कोई इंसान ही जवाब दे रहा है उसका. That's how it is designed. So again, simple use of AI, जो I'm sure हमने सबने देखा होगा. Obviously, जैसे जैसे आप और आगे जाएंगे, इसको और कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है. एंड इसी तरह से ऑपरेशंस हो गया, फाइनेंस हो गया, एंड पीपल में चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पर जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही होती है, लोग सीनियरिटी पे रहते हैं, पर उनका जो नॉलेज है वो उन तक सीमित हो जाता है. तो आज आपके जो सीनियर मैनेजर है, वो अगर छोड़ के चले जाते हैं, तो उनका जो भी नॉलेज था वो किसी और को कैसे हैंडओवर किया जाए. तो यहाँ पे अगेन आप AI को यूज़ करके एक प्लेबुक बना सकते हैं, जिससे कि कोई भी नया इंसान जब आएगा, आप उसको वो चीज़ दे के तुरंत तैयार कर सके. दैट इज़ अगेन द पावर ऑफ द टूल दैट इज़ देयर. अगेन क्विकली गो थ्रू दिस थिंग. मैंने ये चीज़ शब्दों में बयां की है, लेकिन मतलब ये है कि आगे की ऑर्गेनाइजेशन अगर आज कोई बनाता है $100 मिलियन की AI पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इट विल लुक लाइक दिस. क्या होगा? ऊपर में एक डिसीजन मेकर है, आप हैं, CEO है, CFO है, या फिर कोई प्रोडक्शन का कोई मैनेजर है. नीचे की जो लेयर है, ये इंटायरली पॉसिबल है कि अगर ढंग से डिज़ाइन किया जाए, तो दिस ऑल डिफरेंट फंक्शंस विल बी टेकन अप बाय एजेंटिक AI. तो इसलिए देखिए, सारे ये बॉट्स हैं, हर एक को अपने अपने फंक्शन में ट्रेन किया गया है, एंड वो उस चीज़ पे डिलीवर कर रहे हैं. उनको कोई समस्या आएगी, देन दे विल रीच आउट टू यू एंड हायर अप. बट दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्यूचरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन पावर्ड बाय AI टेक्नोलॉजी. तो ये डेमो था नोटबुक LM का, जो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, and you would love it once you start using it. But as promised, look, मैंने जैसे बताया था कि मैंने क्यों पूछा हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी. इट वाज नॉट टू गेट अ स्टैंडिंग ओवेशन. मेरी बीवी ने मुझे नहीं बोला था कि भैया वो लेके आना. बट आई कैन टेल यू द रियलिटी इज़ कि जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसके बाद में इट इज़ यूजफुल फॉर किड्स एट दैट स्टेज, बी इट हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, और यंग प्रोफेशनल्स जो काम में चले जाते हैं, बट पता नहीं होता है कि उनको करना क्या है. बस जो नौकरी मिली या जो मौका मिला उसमें जुड़ गए, लेकिन दे डोंट हैव द क्लैरिटी. तो उस चीज़ के लिए इज़ व्हाट आई मीन अपेरियो हब इज़ ऑल अबाउट. सो वेरी क्विकली, कविता जी ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है मेरा, एंड थैंक यू सो मच. मैं पूरी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, सो फाइनली मुझे वो डिग्री मिल गई. बहुत अच्छा लगा मुझे कि किसी ने मुझे बोला कि CA मनमोहन मल. मेरी वाइफ है चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे मित्र संदीप चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्होंने मुझे अजीत से जुड़ाया, लेकिन मैं नहीं हूँ. मैं इंटरमीडिएट के बाद में मैंने छोड़ दिया था आफ्टर माई IIM अहमदाबाद एंट्रेंस. 2 पिलर है इस बिजनेस के. एक बिजनेस कंसल्टेंसी है, विच इज़ द स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड सो ऑन. दूसरा, द मोर एक्साइटिंग पिलर इज़ catering to the university students, high school students, and young professionals.
एंड मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हम कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये चीज़ डिलीवर कर रहे हैं. एंड ये जो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी है, इट्स वेरी रिसेंट. इट्स बिन लाइक जस्ट 5 or 6 months that I started thinking about this idea because there was a gap in the market, and मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो गैप फिल किया जा सकता है. And I gave it a try, and so far it has been a great success. It is very satisfying experience for me personally. So this is what I managed to achieve in the last 5 months using technology, building the entire platform. So from websites to legal documents to process to monitoring the engagement and all aspects of the business, zero human involvement other than my time with Claude mostly, and maybe ChatGPT and a couple of other chatbots. हकीकत ये हो गई है कि आजकल मेरी क्लॉड से ज़्यादा बातें होती है, मेरी वाइफ से कम बातें होती है. But thankfully she is not complaining, she has been very supportive. But that is the reality. I mean, what do you do? I mean, there's so much that you can do and achieve by talking to these bots. So ये footprint है. यहाँ पर 5 महीने में करीब 300 बच्चों ने internship की है. ये सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जिनको इंटर्नशिप मिलती नहीं है, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता नहीं है. सो दे डू एन इंटर्नशिप विद मी फॉर अ मंथ एंड दे गेट एक्सपोजर इन अ रियल वर्ल्ड बिजनेस केस एंड दे वर्क इन अ टीम. तो बड़ा ग्लोबल टीम होती है. जैसे आप देखिए, मुझे लग रहा है इंडिया से ज़्यादा मार्केट आएगा, लेकिन इंडिया तो है. यूएस सरप्राइजिंगली हैज़ बिन अ फिनोमिनल मार्केट फॉर अस, जहाँ पर इंक्रीजिंगली यूएस के टॉप यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं. आप देखिए, ये यूनिवर्सिटी के कुछ नाम लिखे हैं मैंने, एंड आई एम श्योर सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ वी एक्चुअली एस्पायर टू बी पार्ट ऑफ. सो कॉर्नेल, ड्यूक, कार्नेगी मेलन, मिशिगन, बॉस्टन, डार्टमouth, यूएनसी, कोलंबिया एंड एनयूएस एज वेल. पीपल आर साइनिंग अप. तो जैसे मैं हर महीने की इंटर्नशिप चलाता हूँ, जून के लिए मैंने खोला हुआ है. सिर्फ यूएस के टॉप यूनिवर्सिटी के 500 एप्लीकेशंस आए हुए हैं, एंड आई हैव टू रियली कट इट डाउन टू जस्ट मे बी कीप 50 पीपल टू डू द इंटर्नशिप विद मी. बट द मैसेज हियर इज़ कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, एंड जो अकेले आपको चलाने में आपको मदद करता है, बिकॉज जो जैसे मैंने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है वो सारा काम द AI एंड द टूल्स टेक केयर ऑफ इट. सो आई कैन एक्चुअली come and have a presentation like this while the AI is taking care of capturing all the engagement that is happening behind the scene. Yeah, so this is just a quick rundown of what all I have done using the technology, which is basically जितना भी engagement होता है are on the tools. मैंने Claude से बातें कर करके कुछ एक और प्लेटफॉर्म है जैसे manas.ai and all that, उससे डिस्कशन कर करके ये डैशबोर्ड्स, ये टूल, ये प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जिससे कि आज यूएस में कोई बैठा हो, अफ्रीका में कोई हो, सिंगापुर में हो, इंडिया में हो, while they are engaging with themselves, जिस टूल में वो बात कर रहे हैं, सुबह उठने के बाद में मुझे स्नैपशॉट मिल जाता है कि इसने ये किया, इसने ये बातें की, ये इंगेज था, ये इंगेज नहीं है. ये सारा स्नैपशॉट मुझे मिल जाता है. एंड फिर मैं डिसाइड करता हूँ अगर मुझे उनको रिमाइंडर भेजना है, आई जस्ट क्लिक अ बटन एंड देन ऑटोमेटिक रिमाइंडर गोज टू एवरीवन सो दैट दे कैन कीप इंगेजिंग. बट ये अभी तक सिर्फ A और C तक गया है, T में अभी नहीं गया है. T इज़ दिस वर्क इन प्रोग्रेस, जहाँ पर सारा प्रोसेस जो है ये एजेंटिक AI है वो कर लेगा. एंड देन आई थिंक काबरा जी ने बोला था शायद, या फिर किसी और स्पीकर ने बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बनाओ कि इसको स्केल किया जा सके. सो वंस दीज एजेंटिक AIs आर रेडी, इट विल बी अ स्केलेबल बिजनेस दैट वी कैन बिल्ड ऑन दैट. Yeah, this is, again, I'm wrapping up, I think just 5 minutes left or a few minutes left, but I'm sure बनाता ही होगा वैसे. So एक इन सब सुनने के बाद में एक सवाल सबके मन में आता है. हमारे भी 2 बेटियां हैं, एक यूनिवर्सिटी गई है, एक हाई स्कूल में है, कि भाई आगे की जनरेशन का होगा क्या फिर? सारा काम अगर AI कर लेगी तो फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन नई नहीं है. This we have seen as our generation, we have seen it earlier as well. जब कंप्यूटर और इंटरनेट आया था, जब लग रहा था कि यार सारा काम इंटरनेट और कंप्यूटर से हो जाएगा तो हम क्या करेंगे. एंड उसी समय अमेज़ॉन बना, उसी समय गूगल बना, एंड बहुत सारी कंपनियां बनी. तो हमारा ये मानना है कि ये बदलाव, और ये शायद उससे ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर इस टूल को लेके someone like me with zero background in technology can build something which hopefully will scale with time. The youth of today जो यहाँ बैठे हुए थे यहाँ पर, उनकी जो एनर्जी और आइडियाज़ हैं
वो ये टूल यूज़ करके कुछ और ही बड़ा बना सकते हैं. एंड मुझे ऐसा लगता है कि एम्बिशन प्लस AI. वो बैठे हैं क्या? अच्छा अच्छा, ओके, दिख नहीं रहा वैसे मुझे. अच्छा, बहुत बढ़िया, thank you. So I'm sure you can relate to some of this, and hopefully you use this and create something very meaningful. So this is the last line. So ambition plus AI is enough to build something real. And मेरा पर्सनल ये मानना है कि कंसर्न वैलिड है, रास्ता शायद अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जनरेशन will create more entrepreneurs than anyone before this generation. So thank you so much for your time. Really appreciate this opportunity. And Kavita, thank you so much for making me a CA. Thank you so much, Manmohan sir, for the wonderful session. And of course, degree does matter, but your knowledge and expertise makes you stand equivalent to a chartered accountant here. Thank you so much for your lovely words, what you shared, thoughtful words. And definitely AI in today's world is really growing. The kids, the new generation, the Gen Zs are more towards AI. I learn few things from my children also. They teach me, Mama, आप ये use करिए, आपको काम आएगा. To make some PowerPoint presentations also. So after this last session, next important announcement, I invite Shri Sharadji Soni, our National President, to please come up on stage, and let's see what announcement he has to make.